सॉल्विंग द प्रॉब्लम। दो पहलू हमने देखे थे, एक तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन था, एक था गोल फॉर्मुलेशन। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में आपको इनिशियल स्टेट के बारे में पता होना चाहिए, फाइनल गोल स्टेट के बारे में पता होना चाहिए, क्या एक्शंस आपके पास अवेलेबल हैं और क्या जो इंटरमीडिएटरी स्टेट्स हैं, कौन कौन सी स्टेट्स यू कैन jump from one state to another when you take some action. Goal formulation was it was all about defining the goal, and having the goal objective declared gives you the advantage in terms of limiting the objectives that the agent is trying to achieve, and plus it is a beneficiary information which results in more, you can say you can achieve the solutions in more efficient way. कैटेगरीज ऑफ सर्च एल्गोरिथम्स हमने देखा थे, दो तरह की कैटेगरीज देखी थी। वन वाज योर ब्लाइंड सर्च एंड अनदर वन वाज योर ह्यूरिस्टिक सर्च। The blind search was your without any extra knowledge, only the problem definition is there, and heuristic search was you can make some estimates with the help of some additional information in addition to the problem definition. Then measuring problem solving performance, तो जहाँ पे भी आप प्रॉब्लम डीलिंग कर रहे हैं वहाँ पे यू नीड टू हैव सम परफॉर्मेंस मेजर्स सो दैट यू कैन कम टू द कंक्लूजन कि जो भी आप एक्शन ले रहे हैं वो जस्टिफाइड है या नहीं है। ये हमने देखा था। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स हम कंसिडर नहीं कर रहे थे अपने डिस्कशंस में। सम डिसएडवांटेजेस वर देयर, देन वी वर कंसीडरिंग दिस गोल बेस्ड एजेंट्स। दिस वाज द एग्जांपल दैट वी डिस्कस्ड। Disadvantage was lot of entries in the table and they consume lot of memory. That is the table-based agents. Then search algorithm categorization, two approaches were there: uninformed search and the informed search. So this was the example regarding the route destination example. The different costs are given there. तो ये हमने देखा था कि when you are doing the problem solving, दो phases of formulation कौन से हैं आपके? One is goal formulation, everything about the goal, and the problem formulation. It is about deciding what actions and state to consider in order to reach the goal state. So this was uninformed search में हमने देखा था क्या सिनेरियो हमारे पास बनेगा, और इन्फॉर्म सर्च में हमने देखा था कि आपके पास कुछ मैप इंफॉर्मेशन आपके पास एडिशनल जनरेट हो रही है और उससे आप कैसे वाइजली यू आर एबल टू टेक द डिसीजंस। एंड यहाँ पे थे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसमें बेसिकली क्या है, इसके तीन फेसेस हैं। तो व्हेन यू आर डूइंग द सॉल्विंग द प्रॉब्लम, तीन फेसेस में आपको काम करना है। फर्स्ट फेस आपका है फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन में आप दो चीजें कर रहे हो, वन इज द गोल फॉर्मुलेशन एंड अनदर वन इज द प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। देन सेकंड फेस इज द सर्च फेस। व्हाट इज देयर इन द सर्च फेस इज you need to find the sequence of actions that enables you to reach towards your goal basically. Fine. तो बेसिकली आपने सीक्वेंस ऑफ एक्शंस आपने डिटरमाइन करने हैं और उस सीक्वेंस को आपने फॉलो करना है। इसको फॉलो करने के बाद आप अपनी जो गोल स्टेट पे हैं वो आप वहां पे आप पहुंच सके। तो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सच सीक्वेंस इज कॉल्ड सर्च बेसिकली। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सच सीक्वेंस इज कॉल्ड सर्च। Search algorithm takes problem as input, returns the solution, and once the solution is found, the sequence of actions it recommends is carried out, and this is called the execution phase. Fine. तो तीन phases आपके बन रहे हैं, formulate phase, search phase। search phase में आप वो सारे actions जो sequence में आपने apply करने हैं उनको आप find out करोगे। So that process is basically called the search phase, finding out a sequence of actions which you need to carry out. That is the search phase. And once you have found those sequence of actions, you basically need to apply those actions. You basically need to carry out those actions. Okay, so that is the execute phase. So ये तीन phases आपके involved हैं when you are doing the problem solving. Fine. So यहाँ पे we now have a simple formulate, search, execute, design for our problem solving agent. ठीक है, तो तीन phases हैं। सर्च में you are trying to you find out the sequence of actions which you need to further apply,
And once you have found out the sequence of action, you need to apply those actions. Okay? So that is the execute part basically. So how you are doing the problem solving? By with the help of these three phases. That is formulate phase. Formulate phase consists of your this problem formulation and goal formulation. And search phase is finding out the sequence of actions, and execute is applying those actions. Okay. So formulating the problem. तो formulating the problem इसमें हमारे कौन कौन से components involved हैं when you are trying to formulate the given problem. So you need to do formulate the problem, you need to search phase, and you need to execute the whatever actions you have found out. So the problem, it can be defined by basically four components. ये हमने discuss किए थे. Initial state is there, जहाँ पे आपका पहले एजेंट जो है इनिशियल स्टेट में है, जहाँ पे प्रॉब्लम के बिगनिंग में किस स्टेट में आपका एजेंट है, दैट इज द इनिशियल स्टेट. सेकंड इज द स्टेट डिस्क्रिप्शन पार्ट इज देयर. स्टेट डिस्क्रिप्शन इज बेसिकली द डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉसिबल एक्शंस अवेलेबल टू द एजेंट. किस स्टेट में आपका एजेंट है, उस स्टेट में कौन से एक्शंस जो हैं एजेंट के पास अवेलेबल हैं, और उन एक्शंस को परफॉर्म करने के बाद वो जो आपका एजेंट है नेक्स्ट कौन सी स्टेट में आपका पहुंच रहा है. फाइन. सक्सेसर फंक्शन इट रिटर्न्स अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्शन एंड सक्सेसर. दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन एंड सक्सेसर, where action is the legal action from state X and the successor is the state in which we can be by applying an action. ठीक है. मतलब ये सपोज करें ये आपका जो डी नोड है, आपको पूरा डायग्राम नहीं आपको विजिबल हो रहा होगा, ये दो नोड्स आप कंसिडर करें. आपका एजेंट इनिशियली स्टेट में कहाँ पे है, डी में, एज्यूमिंग इट. तो डी में जो भी आपके पास एक्शंस अवेलेबल हैं, तो इसमें आपको इनिशियली अगर आप डी नोड में हैं, डी में आप यू आर टेकिंग सम एक्शन and by that action you are able to reach in the node E. So that basically the successor function is there. Whatever action you are applying in node D, that is the successor function. With the help of that function you are able to reach in this node E basically. Fine. So then is your goal test is there. Goal test का क्या मतलब है कि जो भी आप next step में आप पहुंच रहे हैं उसको आप चेक कर रहे हैं कि whether it is a goal state or not. तो ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल डी से आप ई में पहुंच रहे हैं, तो ई को आपने चेक किया कि वेदर ई इज द गोल स्टेट और नॉट. इफ इट इज अ गोल स्टेट देन फाइन, यू स्टॉप योर प्रोसीजर्स. इफ इट इज नॉट अ गोल स्टेट देन फर्दर यू कंटिन्यू टू टेक द एक्शंस व्हिच आर अवेलेबल टू यू. जो भी नोड ई में आपके पास एक्शंस अवेलेबल होंगे उनमें से आप कोई चूज करें एंड देन टेक द फर्दर एक्शंस. देन द पाथ कॉस्ट इज a function that assigns a numeric value to each path. Each step we take in solving the problem should be somehow weighted. So if I travel from A to E, our agent will pass by many cities. The cost to travel between two consecutive cities should have some cost measure. Fine. So that is traveling from A to B costs 20 km, or it can be typed as cost of from A to B is 20. Fine. तो वही जो हम डिस्कस कर रहे थे, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम कंटेक्स्ट कि किस कंटेक्स्ट में हम प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं. अकॉर्डिंगली दैट पास्ट कॉस्ट कैन बी अकॉर्डिंगली इन दैट यूनिट बेसिकली. फाइन. A solution to the problem is the path from initial state to the goal state. जो भी आपको solution मिल रहा है वो क्या आएगा, it will be a path from the initial state to the goal state, and solution quality is measured by the path cost. And the optimal solution has the lowest path cost among all the possible solutions. तो जितनी भी आपकी cost incur हो रही है पूरे solution में, that will be the performance measure of the solution. अगर उसमें आपकी जो cost है वो सबसे lowest है, it means that you have been able to achieve the optimal solution. Fine. So this is the components when you define the problem. ठीक है. ये चार कंपोनेंट्स हैं व्हेन यू आर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम.
But when you are solving the problem, then these phases are there. Formulate phase is there, search phase is there, and the execute phase is there. तो ये हम देख रहे थे गोल बेस्ड एजेंट्स का ही जो टाइप है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट, दिस इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ गोल बेस्ड एजेंट्स जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, विच कैन बी यूज्ड फॉर सम प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पसेस। तो इसका हमने देखा था जो वर्किंग है दो फेसेस में है, गोल फॉर्मुलेशन इज देयर एंड द प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। फाइन, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में इट वाज द फॉर्मुलेट, सर्च एंड एग्जीक्यूट फेज, and the goal formulation was all about the formulating the goal। आप ये दोनों चीजें कर सकते हो ना। गोल फॉर्मुलेशन में आपको गोल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तो बाय दिस इन्फॉर्मेशन यू कैन फॉर्मुलेट द गोल। गोल फॉर्मुलेशन कैन बी डन, and similarly for the problem formulation you should be having the initial state with you, information with you, the goal information should be there, the actions which are available to you in each state, that information should be there. So with those information you can formulate the problem also. So example problems are there, we will discuss those problems। search strategies हमने देखा था दो types की हैं, informed और uninformed। specify the objectives to be achieved। गोल फॉर्मुलेशन में हम ऑब्जेक्टिव्स जो है हमें क्लियर होता है, बेसिकली हमारे पास क्लियर पिक्चर होती है ना, हमने किस एंड स्टेट पे हमने रीच करना है, या क्या गोल स्टेट हमारी क्या है जिसको हम अचीव करना चाह रहे हैं। तो बाकी की जो टेंडेंसीज हैं या जो बाकी की सिनेरियोज हैं उनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। जो आउट ऑफ द पिक्चर सिनेरियोज हैं उनको हम बेसिकली इग्नोर कर सकते हैं अगर आपके पास गोल इन्फॉर्मेशन है। तो गोल, व्हाट इज द गोल? इट इज अ सेट ऑफ डिजायरेबल वर्ल्ड स्टेट्स इन व्हिच द ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड। तो ये बेसिकली गोल भी आपका वन ऑफ द वर्ल्ड स्टेट्स ही है जिसमें आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो रहे हैं। करंट स्टेट इज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द गोल फॉर्मुलेशन, जहाँ पे करंटली आपका एजेंट है। एक्शंस क्या होते हैं? दे कॉजेज द ट्रांजिशंस बिटवीन द वर्ल्ड स्टेट्स। Actions basically they are responsible for the changes, transitions is the changes between the world states। चेंजेस मतलब कैसे हो रहे हैं? एक स्टेट से आप दूसरी स्टेट में जा रहे हो तो चेंज हो रहा है ना, तो वो चेंजेस कैसे हो रहे हैं? बिकॉज यू आर एबल टू टेक सम एक्शंस। जो एक्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, आपके एजेंट के पास अवेलेबल हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट में, वो एक्शन आप परफॉर्म करोगे, उस एक्शन की वजह से आप दूसरी स्टेट में आप जाओगे। ठीक है, सो that is why the change is happening, that is why the transition is happening। The actions are basically responsible for transitions between the states basically। Clear? Problem formulation, possible world states। तो बेसिकली हम क्या करते हैं प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में? स्टेट्स वी कंसीडर, स्टेट्स आर पॉसिबल वर्ल्ड स्टेट्स या पॉसिबल सिनेरियोज या possible environment situations you will come across or your agent will come across while going from start state to the goal state। So states are basically all the possible world states, all the state space basically that comprises, that is the states basically। Accessibility is the agent can determine via its sensors in which state it is। एजेंट के पास सेंसरी इनपुट्स आ रही हैं विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एजेंट डिटरमाइन कर सके कि प्रेजेंटली उसकी स्टेट क्या है। अगर वो नोड ए में है तो एजेंट को बेसिकली पता लगना चाहिए कि वो नोड ए में प्रेजेंटली है, तभी वो नोड ए में जो एक्शन उसके पास अवेलेबल है तभी वो ले पाएगा ना। देन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शंस, द एजेंट नोज द रिजल्ट ऑफ इट्स एक्शंस। अब ये उसमें पॉसिबल है, उसमें आपका इन्फॉर्म सर्च में कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शंस। अगर एजेंट को कॉन्सिक्वेंसेस पता है देन ओनली देन द एजेंट कैन टेक सम वाइज डिसीजन कि ये एक्शन मुझे जो है वो गोल स्टेट के पास लेके जाएगा या गोल स्टेट से दूर लेके जा रहा है, तो अकॉर्डिंगली इट कैन टेक द डिसीजंस बेसिकली। देन लेवल्स आर प्रॉब्लम्स एंड एक्शंस कैन बी स्पेसिफाइड एट वेरियस लेवल्स। Levels is problem and actions can be specified at various levels। So various levels can be defined। Accordingly जो है आपके actions जो है वो change हो सकते हैं agent के based upon different levels। मतलब starting में if you are at the starting level of the problem then the actions जो आपके पास available हैं वो different हो सकते हैं as compared to the when you are very near to the goal state।
So that is what we are discussing here. Performance is measures to be applied. So every time you need to have some performance measures with whatever actions you are doing, whatever changes are happening, you need to have some performance measures. तभी आपका जो success है, जो criteria है आपका success को measure करने का, तभी हम पता कर पाएंगे ना. If you have the capability to measure the justification of the actions that you are taking, then only it is justified. Then cost is there, that is utilization of resources. How efficiently you are able to use up the resources which are available to you. Okay, then success is there, has a solution being found. ये goal test हो गया आपका. Success has the solution been found. Then quality is there. Quality is performance measure of the solution. Optimal solution is if it is having the least cost. और cost आपका क्या है? Search cost and the path cost. So the cost it may involve the search cost, जो भी आपके efforts लग रहे हैं search करने में, that is the search cost. Or the path cost is the cost involved in traversing the path from source node to the intermediary node to the goal node. Fine. So that is all the cost. जो सारी costs involved हैं, उनको सभी को हमने consider करना है. That is what the performance measure is. That is what यहाँ पे वो हमें बता रहे हैं. Performance measure is the quality of the solution. We need to be concerned about optimal solution, whether the solution which we have obtained it is the optimal solution or not, and what is the cost involved. Right. So that is the performance measure. अब ये देखें यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है. वैक्यूम वर्ल्ड एजेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं. तो उसमें क्या था हमारे पास, 2 स्क्वायर्स हैं या 2 टाइल्स हैं हमारे पास. आइदर वन इज डर्टी और वन इज क्लीन एंड द एजेंट हैज सेंसर्स. फाइन. स्टेट्स क्या है, लोकेशन ऑफ वैक्यूम, कहाँ पे एजेंट अभी आपका है, और टाइल्स जो है वो डर्टी हैं या क्लीन है. ऑपरेटर्स मतलब एक्शंस. यहाँ पे जो ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं वो एक्शंस की बात हो रही है कि एजेंट के पास क्या एक्शंस अवेलेबल हैं, वेदर एजेंट कैन मूव लेफ्ट राइट और इट कैन क्लीन द टाइल. देन गोल टेस्ट इज देयर, ऑल स्क्वायर्स आर क्लीन. एंड में जो एंड ऑब्जेक्टिव आपका क्या होना चाहिए, ऑल स्क्वायर्स शुड बी क्लीन. समटाइम्स जो आपका एंड ऑब्जेक्टिव है इट कैन वेरी फ्रॉम वन प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम. राइट. मे भी हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव ये भी होगी बहुत कम टाइम में आप जो अपनी सारी टाइल्स हैं वो क्लीन कर सकें. So that may also be one of the objectives or goal or goal state. Then path cost is 1 unit per action. अगर आप once आप लेफ्ट मूव कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट क्या है, 1 यूनिट. अगर आप once आप राइट मूव कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट क्या है, 1 यूनिट पर एक्शन. फाइन. So this is all about the problem solving thing when you are considering the vacuum world agent. Okay. Then real world problems, some real world problems examples are there. Route finding problems are there. Again, the traveling salesperson problem is there. Again, it is with concern with the route finding. Then VLSI chips are there which gates and all those very small disconnections are required to be made. So all these things you would need to consider कितना efficiently आप जो space को आप utilize कर सकें. And Robert Nelson, these are some of the examples are there. Search, then search में हमने क्या discuss किया था? Examine the possible sequences of actions. Search में you need to have the sequence of actions जो बाद में आप जिनको आप apply करते हो. Input आपके पास क्या है, search. जब आप using the search strategies, this is one of the strategies ना. Different strategies हमने discuss किए थे कि one is your search strategies is there, second is your with the help of knowledge representation you can do that. Then third is with the help of this if then coding rules you can approach the problem. Then fourth approach was your using this neural networks and this biological techniques are there. So search is one of those techniques by which you can trying finding out the solutions. Search, when you are using the search procedures, आपके पास input में क्या होना चाहिए, problem description होनी चाहिए about the problem. You should be having the information and then the initial state about the problem.
Then output, that is the goal state. The solution has an action sequence. आउटपुट इज आउटपुट क्या डिजायर्ड है आपको यू डिजायर फॉर द सोल्यूशन दैट हैज सम एक्शन सीक्वेंस की उस एक्शन सीक्वेंस को फॉलो करके you are able to have that solution. Fine. The solution is basically the sequence of actions performed in some sequence, performed in some specific way. कि पहले आपको ये एक्शन करना है, then second, then third, and then fourth, and then so. Search space is the set of all the possible action sequences. Fine. So this was all about this problem formulation, and सर्च स्ट्रेटजीज हम डिस्कस कर रहे थे ना. ये भी डिस्कस कर ही लेते हैं. दिस इज द पार्ट ऑफ द सर्च थिंग. हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा ना. सर्च स्ट्रेटजीज हम डिस्कस कर रहे थे. स्टेट प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, स्टेट स्पेस सर्च, अनइन्फॉर्म्ड सर्च, इन्फॉर्म्ड सर्च. फाइन. स्टेट स्पेस में क्या है आपके पास? कंसेप्ट ऑफ स्टेट स्पेस एंड द सर्चेस दैट कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लोर द स्पेस इन ऑर्डर टू फाइंड द सॉल्यूशन. ये हमने डिस्कस किया ही है. बिफोर एन ए प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड एज अ स्टेट स्पेस. जो भी ए प्रॉब्लम के साथ आप डीलिंग कर रहे हैं, that should be represented as some kind of a state space. उसको आप मतलब उसको आप represent कर सको so that in such a way such that your AI system और जो भी system आप build करने की कोशिश कर रहे हो वो उसको समझ पाए. One way is you represent your problem in terms of state space representation. Your problem should be having the state space representation. You should be able to model your problem in terms of state space basically. Then the state space is then searched to find the solution to the problem. Then फिर आप सारा वो explore करते हो जो भी आपका state space बनता है in order to reach the solution of the problem. So the state space it consists of a set of nodes representing each state of the problem. ये हमें पता है. Each node basically जो है वो it is acting as a state of the problem. Arcs between the nodes representing the legal moves from one state to another. जो arcs हैं, node की जो arcs हैं, तो आपके एजेस हैं, एजेस जिसको हम बोल सकते हैं डिफरेंट नोड्स में, वो एक्ट कर रहे हैं द लीगल मूव्स और एक्शंस जो आपके पास अवेलेबल हैं. और आपके पास क्या है? इनिशियल स्टेट है और गोल स्टेट है. राइट. मतलब इनिशियल स्टेट हो गया आपके पास, गोल स्टेट हो गया, और जो भी आपके पास एक्शंस अवेलेबल हैं एट ईच पर्टिकुलर स्टेट. राइट. एंड द लास्ट पॉइंट इज ईच स्टेट space takes the form of tree or a graph. So जो भी आपका state space है, you can represent that state space in terms of a tree or in terms of a graph basically. Fine. State space problem consists of a set of states, a distinguished set of states called the start states. Your problem, it can have more than one start state. It is not necessary कि आपके पास starting जो state है वो one ही होएगी हमेशा. It can be more than one start state also. A set of actions available to the agent in each state. An action function that given a state and an action return the new state. ये जो आपका action function है किसी पर्टिकुलर स्टेट में वो क्या रिटर्न करेगा? न्यू स्टेट करेगा जब आप कोई एक्शन जो है अप्लाई करोगे. सेट ऑफ गोल स्टेट्स, अगेन आपके पास एक से ज्यादा गोल स्टेट्स हो सकती हैं, और ये बेसिकली दे आर डिफाइंड एज अ बूलियन फंक्शन. व्हाई? क्योंकि गोल टेस्ट जब आपने करना है तो इट विल ओनली रिटर्न एज अ 0 और 1. so that's why they are basically specified as a boolean function. Then a criteria that specifies the quality of an acceptable solution. तो ये आपका सारा परफॉर्मेंस मेजर आ गया. ठीक है. फॉर एग्जांपल एनी सीक्वेंस ऑफ एक्शंस दैट गेट्स द एजेंट टू द गोल स्टेट मे बी एक्सेप्टेबल, or there may be costs associated with actions, and the agent may be required to find a sequence that has a minimal total cost. This is called an optimal solution. जहाँ पे आपकी जो cost आ रही है वो minimum हो, वहाँ पे जो आप solution है उसको बोल सकते हैं optimal solution.
Alternatively, it may be satisfied with any solution that is within 10% of the optimal. परफॉर्मेंस मेजर्स हैं आपके, बेंचमार्क्स हैं आपके, मतलब किस बेंचमार्क्स तक आपका जो सोल्यूशन है वो एक्सेप्टेबल है. दैट इज ऑल अबाउट द performance measures and the criteria for एग्जाम्पल में आपके डीएफएस हैं डीएलएस डेप्थ लिमिटेड सर्च ये हमने डिस्कस किए थे. प्री सर्च इज देयर. प्री सर्च में बेसिकली आपके पास कुछ गोल नोड्स गिवन है और स्टार्टिंग नोड से आप अपनी सर्च जो है वो यू कैन बिगिन योर सर्च फ्रॉम सम गिवन स्टार्टिंग नोड. कुछ गोल नोड्स आपके पास हैं जहाँ पे आपने पहुंचना होता है और ये क्राइटेरिया आपका डिफर करता है कि किस तरह के गोल नोड को आपने रीच करना है. ठीक है. तो ट्री में बेसिकली आपके पास एंड में कुछ लीफ नोड्स हैं, ये देख रहे हैं. दिस इज द ट्री एंड इन द एंड देयर इज सम लीफ नोड इज देयर. लीफ नोड इज जिसके आगे फर्दर कोई चाइल्ड नोड्स नहीं है. तो ट्री इज हैविंग सम लीफ नोड्स एट द एंड ऑफ द ब्रांच, राइट. This is about the tree search. Depth first search हमने डिस्कस कर चुके थे. Explore the path all the way to the leaf before backtracking and exploring the another path. ये एक ब्रांच को पकड़ के उसको पूरी डेप्थ में उसको सर्च करता है, जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है. ठीक है. जब उसको फर्दर उसको कोई सोल्यूशन मिलता नहीं है, देन इट विल ट्राई टू बैक ट्रैक टू इट्स प्रीवियस नोड. और उस नोड पे क्या उसके पास ऑप्शंस आ रही हैं, इट विल ट्राई टू एक्सप्लोर ऑल दोस ऑप्शंस. दिस इज व्हाट द डीएफएस इज. इसमें डीएफएस में एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पे अगर एल नोड के बाद आपका कोई इनफाइनाइट लूप लगा हुआ है एल नोड के बाद, तो आप हो सकता है कि आपका जो डीएफएस है वो यहाँ पे स्टक कर दे. एल के बाद इनफाइनाइटली वो सर्चिंग जो है वो कॉन्टिन्यूसली यहीं पे करता रहे एल के बाद. तो जो बाकी की जो नोड्स हैं वो ट्रावर्स नहीं हो जाएंगे. दैट इज so it needs to take care of if any this infinite loops are not there in the tree or in the graph. ठीक है जी. और this is the way how the DFS works. Then breadth first search is explores the nodes nearest to the root before exploring the nodes further away. तो ये basically nodes जो हैं जो आपका सोर्स नोड है उससे जो नियरेस्ट नोड्स हैं, सोर्स नोड्स से जो नियरेस्ट नोड्स हैं पहले उनको एक्सप्लोर करेगा. देन इट विल गो टू द फर्दर नोड्स डाउन द लेवल. पहले जो नोड्स हैं एट द सेम लेवल दे आर एक्सप्लोर्ड फर्स्ट एंड देन नोड्स एट द फर्दर लेवल दे आर एक्सप्लोर्ड. डिस्कस किया ही हुआ है. होपफुली आप लोग यू रिमेंबर ऑल दीस थिंग्स. दिस इज द वे हाउ द बीएफएस वर्क्स बेसिकली. फाइन. कॉम्प्लिकेशन, इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, अगर आपकी जो ट्री की जो है ब्रेड्थ है, इफ इट इज क्वाइट ह्यूज, तो वो उसमें जो है आपकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाएगी इसमें बीएफएस में. बिकॉज गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल इट इज रिक्वायर्ड टू हैव द प्रीवियस सॉल्यूशन इन द मेमोरी. ठीक है. क्योंकि वो जो ट्रावर्स कर चुका है उसी को वही आपका सोल्यूशन जो है वो फॉर्म कर रहा है ना. तो इफ द ब्रेड्थ इज क्वाइट ह्यूज देन आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितनी जो नंबर ऑफ नोड्स हैं वो हर एक लेवल पे आप देख लें कैसे इंक्रीज हो रही है. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 raised to power 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे मतलब इतनी इंक्रीज नहीं हो रही है. सी एट द लास्ट लेवल. So if it is a binary tree, you can estimate the nodes. They can be increasing at huge level at each level. So that will basically add to the space complexity. So that is the factor associated with it. This is simple algorithm is there for the DFS. DFS में हमें पता है हम stacks use करते हैं. This was the algorithm. Starting root है वो stack पे डाल दिया. Stack is not empty. Till the stack is not empty, you remove the node from the stack. स्टैक में से जो भी नोड है उसको रिमूव करेंगे, जो टॉप पे है उसको आप चेक करेंगे कि दैट इज गोल टेस्ट यहाँ पे आप कर रहे हैं. इफ नोड इज अ गोल नोड, यहाँ पे आप गोल टेस्ट कर रहे हैं. इफ इट इज अ गोल नोड देन रिटर्न सक्सेस. अदरवाइज वो गोल नोड अगर नहीं है तो उसके जो सारे चिल्ड्रन है उस नोड के वो दे विल बी इंसर्टेड ऑन टू द स्टैक. राइट. तो दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू. अगर सारे प्रोसेस के करने के बाद भी आपको गोल नोड नहीं मिल रहा है देन रिटर्न फेलियर. राइट.
So the stack must be large enough to hold the longest possible path, that is the maximum depth of the search. So it is obvious जितनी आपकी branch की depth है, तो सारी nodes जो है वो आपके store होने वाली हैं आपके stack पे. तो stack should basically support that much of memory in order to give the solution. The PFS is again the same thing, but we are using the queues. The algorithm is the source node, the starting node, or the root node. You need to put that on the queue. Then you check while the queue is not empty. Then you remove the node which is at the front of the queue. रिमूव करने के बाद उसको आप चेक करेंगे कि वो गोल नोड नहीं है. अगर गोल नोड है तो आपके प्रोसीजर्स खत्म हो जाएंगे, रिटर्न सक्सेस. अदरवाइज उस गोल नोड के सारे जो चिल्ड्रन है, यू प्लेस देम ऑन टू द क्यू एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज. अगर अगर आपका सक्सेस हो जाता है देन इट इज फाइन, यू एग्जिट, अदरवाइज रिटर्न फेलियर. फाइन. तो ये देखें, ये वी वर डिस्कसिंग जस्ट बिफोर स्टार्टिंग टू एक्सप्लोर लेवल एन बीएफएस में. नेक्स्ट लेवल एक्सप्लोर करने से पहले जो आपका क्यू है, इट शुड होल्ड ऑल द नोड्स एट लेवल n-1. पिछले लेवल की जो सारी नोड्स हैं, दैट इट शुड हैव द कैपेबिलिटी टू स्टोर ऑल द नोड्स व्हिच आर देयर एट लेवल n-1. राइट. So in a typical tree, the number of nodes at each level increases exponentially with the depth. So this was we were discussing. If the nodes are increasing at exponentially, then आप अंदाजा लगा सकते हैं कि within 6 to 7 levels, 2 raised to power 6, कितनी nodes जो है वो उसको स्टोर करनी पड़ेंगी. That is there. Difference is there. When the breadth search succeeds, it finds the minimum depth goal node. Minimum depth तो है ही है. उनके source nodes, जो starting node है, उसके साथ जो भी उसके साथ nearest nodes हैं, उनको वो search करता है पहले. Depth first search क्या करता है? The goal node has not to be necessarily minimum depth. तो मैं पता ही है कि वो एक branch को वो traverse करता है in the depth. So the goal node, it hasn't to be necessarily at the minimum depth in the depth first search. So again, this is one variation of depth first search, that is depth limited search is there. तो इसमें बेसिकली क्या है, डेप्थ लिमिटेड वर्ड से हमें पता लग रहा है कि डेप्थ को हमने लिमिट कर दिया है. जो आपका था डेप्थ फर्स्ट सर्च, उसमें जो जितनी ट्री की डेप्थ गिवन है वो सारी डेप्थ को वो एक्सप्लोर करेगा. यहाँ पे हमने डेप्थ को लिमिट कर दिया है. सपोज अगर हम चाहते हैं कि जो ट्री है वो डेप्थ लेवल नंबर 2 तक हमने एक्सप्लोर करना है, अगर वहाँ पे हमें सोल्यूशन मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज वी डोंट वांट टू गो फर्दर. तो वही हमने किया है यहाँ पे. इफ डेप्थ इज ग्रेटर देन लिमिट हमने फिक्स कर दी है. सम लेवल वी हैव फिक्स. अगर डेप्थ जो है वो लिमिट से बढ़ गई है देन रिटर्न फेलियर. मतलब उस सारे ट्री को हमने एक्सप्लोर नहीं किया है, अब स्टिल सम डेप्थ तक हमने एक्सप्लोर किया है. वहाँ पे अगर सोल्यूशन मिल जाता है वहाँ तक देन इट इज फाइन, अदरवाइज फेलियर इज रिटर्न. देन इफ नोड इज अ गोल नोड देन रिटर्न सक्सेस. अदरवाइज अगर तो लिमिट से बढ़ गया देन फेलियर है. अगर नोड गोल नोड है देन रिटर्न सक्सेस. गोल टेस्ट हम कर रहे हैं. अगर गोल नोड नहीं है देन क्या करेगा, फॉर ईच चाइल्ड ऑफ द नोड इफ लिमिटेड डीएफएस चाइल्ड लिमिट डेप्थ प्लस 1 रिटर्न सक्सेस. तो उसके चाइल्ड का वो गोल टेस्ट करेगा, जो भी उसका चाइल्ड है, एंड लिमिट इज नॉट देयर. तो वो अगर मिल जाता है as a goal node, then again it returns as a success. अगर गोल नोड भी, अगर नोड भी सक्सेस नहीं मिल रही है, नोड का चाइल्ड भी जो है मैच नहीं कर पा रहा है, then it has to return the failure. राइट. तो फेलियर जो है आपका 2 सिनेरियोज में रिटर्न हो रहा है. अगर आपका जो डेप्थ है in that case when it increases the limit then it returns failure, or when all the nodes are traversed, all their childs are traversed and they are not matching the goal node, then in that case also you are returning the failure. Since this method is basically DFS, if it succeeds then the path to the goal node is in the stack. तो जो भी ये भी स्टैक ही यूज करेगा डेप्थ लिमिटेड सर्च, बिकॉज इट इज अ वेरिएशन ऑफ
डेप्थ फर्स्ट सर्च फाइन। तो ये भी आपका जो आपका सॉल्यूशन है इट विल बी स्टोर्ड ऑन द स्टैक बेसिकली। ये डीएफएस का एग्जांपल था। ये स्टार्टिंग में फर्स्ट नोड, देन सेकंड नोड वाज इंसर्टेड, देन फिफ्थ नोड, देन सिक्स्थ, देन ninth node will be removed, then sixth, fifth, one, so on. This this way the procedure goes on. ये हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। So this basically completes your this problem formulation thing. So that's why I just wanted to complete it today because we took the topic by today. तो कल फिर दोबारा करना पड़ना था। Any doubts in this? Yes, class. Any doubts? Okay.